Shastra explains that you have to pay your pranam obeisances lotus feet of Lord Nrsimha to perform bhajan and sadhana. Because जीव के हृदय में जब तक अनर्थ रहता है तब तक जीव भजन नहीं कर सकते. When our anartha will be destroyed, then we will be perform bhajan and sadhana. Almost घुसिले जीव Lord Krishna नाम. Chaitanya Charitamritam Krishnadas Kaviraj Goswami wrote this verse. Almost घुसिले जीव Lord Krishna नाम. Almost means all kinds of sinful activities. And घुसिले means when you destroy. When all kinds of sinful activities destroy from our heart, then we will utter the name of Lord. So, but how all our kalmas माने क्या बताया? Sinful activity. Kalmas माने पाप. How will remove all the sinful activity from our heart? Only our bhajan sadhan. We cannot remove all kinds of sinful activity from our heart. Sadhu Guru Kripa Vina nahi ko upay. Without this mercy of Sadhu Guru, we cannot achieve our perfection goal. So Lord Nrsimhadev, that means Krishna himself manifested in the form of Lord Nrsimhadev, and he destroys all kinds of our obstacles, sinful activities from our. To worship Lord Nrsimhadev. Without mercy of Lord Nrsimhadev, you cannot remove all your obstacles. The Shastra is Sarva Vigna Vinasana Nrsimhadev. Lord Nrsimhadev, he destroys all kinds of our obstacles. So before Parikrama, Navadip Parikrama, every year we used to come here, Lord Nrsimhadev. But according to the schedule, sometimes not possible to come first Nrsimhadev. Some reasons anyhow. But we are going to Mayapur. Day after tomorrow, we will go the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Actual Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and when he established Devananda Gaudiya Mount and Gaudiya Vedanta Samiti, the first parikrama should be come in Nrsimhapalli. Because without Nrsimhadev mercy, we cannot to perform Navadip Dham Parikrama. And this Navadip Nrsimhapalli is called, one name is called also Devapalli. Devapalli. Devapalli means, Deva means the demigod. Palli means the village. That is called the village of demigod and demigoddess. In the beginning of the creation, Satya Yuga, and Lord Nrsimhadev, he manifested in this place. Though there are many Lord Nrsimhadev named in our Shastra. If you go South India, and also many Nrsimhadev temple and many Nrsimhadev devas manifested in India. So this place is called Nrsimhapalli or Devapalli. And Prahlad, when Hiranyakashipu, he tried to kill Prahlad Maharaj, then Lord Nrsimhadev appeared from pillar. These things also described in Srimad Bhagavatam and Nrsimha Puranas and different Puranas, glorified about Lord Nrsimhadev Mahima. And Kalpa Vedesu Hari Katha, different Kalpa. Lord Nrsimhadev manifested different places also. Kalpa means 1 day of Brahma. That is called the Kalpa. So different Kalpa, Lord, he appears in different places in there. In Satyajug, when Lord Nrsimhadev, he killed Hiranyakashipu,
Then after he also came here and took rest. And after killing demon Hiranyakashipu, then Lord Nrsimhadev also took rest in him. Then all the demigods that time they also came and also they did many stops to do. And so here, for this regard, their place is called Nrsimhapalli or Devapalli. Devapalli means when Lord Nrsimhadev appeared, all demigods they manifested in the form of human beings, and they also stopped to Lord Nrsimhadev. And this is also placed in the one pond also. And that is called Deva Sarovar. Dev Sarovar. Lord will be different kalpa. Lord Nrsimhadev also and took bath or manifested in this pond. So different kalpas Hari Katha and Lord Nrsimhadev and in here in the beginning of the creation. And सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान नृसिंहदेव यहाँ पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के समस्त प्रकार की बात गम सकिया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की संकल्प लिया तो इन ब्रह्मा जी ही टुक भाव आई विल क्रिएट बिकॉज लॉर्ड कृष्ण he gave to responsibility to Lord. He also worshipped Lord Nrsimhadev. Because without the mercy of Lord Nrsimhadev, you will not successful of your duties and responsibility. For this regard, Brahma ji he also worshipped Lord Nrsimhadev. These are different kalpas katha also, not one kalpa. And another kalpa katha also you listen from Srimad Bhagavatam. The Brahma's four sons, Sanatan, and Sanat Kumar. And they also proceed to Vaikuntha Dham, and that time Joy and Vijay, two gatekeepers, security guard, they stopped to them. And that time four Kumaras, Brahmachari, they become very angry with them. Then they curse to Joy Vijay. For this regard, Joy Vijay, they also descended from Vaikuntha Dham in the form of demons. Hiranyaksha first, that is called Satyajug, and that is called Hiranyaksha and Hiranyakashipu. And then Satatreta Yug, that is called Ravan, Kumbhakarna, Nrsimhadev, and he killed Hiranyakashipu. Our Lord Varahadev Bhagavan, he killed Hiranyaksha. This katha is there. But this katha has some significance about this Leela. What is the meaning of Hiranyaksha? What is the meaning of Hiranyaksha? Hiran means gold. Aksha means eyes. That means one's eyes are going to enjoy the material sense gratification. Gold, actually gold is means why people are keeping gold for the enjoying the material sense gratification. That is called gold. That means one's eyes are going to enjoy the material sense gratification. That is called Hiranyaksha. Hiranyaksha, Hiranyaksha. Hiranyakashipu. Hiranya means gold. Kashipu means soft bed. One who likes to sleep on the soft bed. Also he is called Hiranyakashipu. समझ में आता है? I will not tell too much you, but what is the topmost and very soft bed? Hola, Portuguese. हाँ? क्या बोले? Most comfortable. Ladies, wife.
हाँ हाँ फीमेल बॉडी, बॉडी, फीमेल बॉडी, हाँ फीमेल बॉडी के साथ जो अधिक रूप में क्या करते हैं, हाँ वो सब है उसी के जल में हो सब। हाँ अब कितने कितने व्याख्या है, सच बोलो तो मारे लट्ठा। हाँ सच मारे तो मारे लट्ठा। इफ यू स्पीक ट्रूथ देन एवरीबॉडी विल बीट यू। जो अधिक स्त्री संग आदि करते हैं उसको भी उसी में चलता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया असुर कौन है, असुर कौन है, दो भूत स्वर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरी तद विपर्जय है। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। टू काइंड्स मीन मतलब क्या है, दो प्रकार के नेचर के व्यक्ति है। एक है भोग विलासी और एक है भगवत सेवा। इसलिए त्रिविक्रम महाराज जी के कथा सुनना चाहिए। हैं हम तो उतना नहीं बोल रहे हैं, इतना ही बोल दिया शायद आप लोग की कष्ट हो रहे हैं। हाँ यहाँ पर स्त्री कहने से पुरुष की भी स्त्री कहा जाता है। ऑल्सो द बॉडी ऑफ मेल बॉडी दे आल्सो कॉल, क्या बोला, वो भी स्त्री भोगी है सब। यूजिंग दिस वर्ड ऑफ द ओनली फॉर द मेटेरियल बॉडी, not only the saying this material body, even you are male body, but if you are enjoying the sense gratification, also it belongs to Hiranyakashipu. Understand? क्या बोला, बता दो क्या बोला मैंने। Those who are engaged in this material sense gratification, they are actually Hiranyakashipu. And female or the Stree word is not just for a female, it's for a male body also. So if you are enjoying like the opposite sex, so it's both for male also and for female as well. समझ में आया कि नहीं है? इसलिए आप लोग की दुख करने की कोई बात नहीं है। बोले महाराज हमें कोई पूछता नहीं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं नहीं। आई डिड नॉट क्रिटिसाइज टू एनीवन, बट दिस इज ट्रू। इसलिए हिरण्यकशिपु के तात्पर्य है जो अधिक रूप में जो देहात्माभिमान रहा करके जो भोग विलास में मत्त होते हैं, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, दे आर बिलोंग टू मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, बट बोथ आर कॉल्ड हिरण्यकशिपु। ये शास्त्र के कहने की तात्पर्य। दिस इज द मेन थीम ऑफ शास्त्र, शास्त्र के विचार। ये मत समझो जो केवल पुरुष अच्छा है या स्त्री बेकार है, बस स्त्री बेकार है स्त्री पुरुष अच्छा है, ये बात नहीं है। शास्त्र में जो कहा गया उसको समझना चाहिए। जो अधिक रूप में सांसारिक वस्तु भोगना चाहते हैं वो सब क्या है, कशिपु ऐसा, वो स्त्री हो अथवा पुरुष। अर्थात एक शब्द में कहा गया, ओनली वन वर्ड यू कैन से, दैट इज कॉल्ड भोग विलासी, टू एंजॉय इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जब हमारे हृदय में रहेगा तब हम भक्ति नहीं कर सकते। Definitely Lord, He destroys all kinds of the sense gratification from the heart of the conditioned soul. बद्ध जीव के हृदय से ये अनर्थ और भोग विलास जब तक दूरीभूत नहीं तब तक भक्ति नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कलमस घुचले जीव लय कृष्ण नाम। क्या बोला, कलमस माने पाप। When all kinds of sinful activity destroy from our heart, then we will be qualified to chant holy name.
ये कहने की तात्पर्य है। इसलिए लॉर्ड नृसिंह देव के पास हम इसलिए आए हैं, हे नृसिंह देव, प्लीज रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम लॉर्ड। बोलो नृसिंह देव हमें कृपा करें। हमारे हृदय में जितने प्रकार के भोग वासना है, सांसारिक भोग वासना, सांसारिक क्या बोला, सांसारिक हृदय में जितने सांसारिक वासना भोग वासना है, आप कृपा करके दूर कर, ये प्रार्थना कर। नृसिंह देव के पास आने के लिए यही आए हैं, और नृसिंह देव के पास आकर के जुगल जीडी सरकार बन जाए। कोल क्या बोलता है, कौन सा सरकार बनता है, कोलिशन सरकार ने क्या बोलता है, कौन सा सरकार, मिली जुली सरकार बन जाए, कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए। कोलिशन गवर्नमेंट जानते हो कि नहीं, गठबंधन सरकार बन जाए, वो पता नहीं, वो नहीं, ठीक नहीं है। मतलब क्या है, नृसिंह देव के पास आकर के विवाहादि वासना को त्याग दो, बस सीधी बात करके सब खोल करके बोलना पड़ता है। और विवाह करने कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान भजन करना है, भगवत भजन के लिए ये हमारे ऐसा यही है। नहीं तो भगवान के पास आकर के वही मांगे, जैसे कौन मांगा था, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि भगवान विष्णु के बहुत दिन तक आराधना की, श्रीमद् भागवत विवाह। कर्दम ऋषि ही वर्शिप टू लॉर्ड विष्णु, then Lord he appeared, asked Kardam, what do you want? बोले I want one nice wife। भगवान के पास मांग रहे कि नहीं? भगवान ने कहा, भगवान के आंखों से आंसू आ गए, और उनके आंसू से एक सरोवर बन गया, जिसे कहा जाता है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर है, ये इलाहाबाद के पास है बिंदु सरोवर। हाँ हाँ क्या, वो दूसरी कथा है, ये कथा है बिंदु सरोवर कैसे बने, कल्प भेदी से वो भी हो सकता है, ये नहीं जो एक ही कल्प में है। हाँ, कल्प भेदे से हरी कथा। तो उसी बार भगवान के आंखों से आंसू आ गए, और उसे आंसू से जो है एक विशाल सरोवर बने, इसके नाम हो गया बिंदु। भगवान के आंखों से इसलिए आंसू आ गया, भगवान का देखो मेरा भजन करता है, आमा भजे मागे विषय सु आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय क्या ना दिव सचानम ते दिया तारे विषय भुलाई। भगवान कहते हैं मेरा भजन करता है और मांगता है क्या चीज, विषय सुख मांगता है, किंतु इस संसार के विषय क्या दुखदायी है कि नहीं है। भगवान नृसिंह देव के पास आकर के क्या मांग लिया है, पत्नी मांग लिया कि पति मांग लिया है, तो मांगा क्या, दुख ही मांगा, दुख ही मांग लिया ना, दुखी तो मांगा और क्या मांगा है। पत्नी क्या होगी वो आपको पता नहीं है, पति भी क्या होगा आपको पता नहीं है, गीता संसार होगा कि कौन सा संसार होगा, समझ में नहीं आता। हाँ, इसलिए वो कह रहे कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सु आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय क्या न दिव सचनम मृत्यु दिया तारे विषय बुलाए है। जो मांगने वाला उसको तो पता ही नहीं है क्या मांग रहे। जैसे बच्चा माँ के पास मांग लेते हैं कुछ, क्या मांगते हैं, मैया मुझे क्या दे दो, खिलौना दे दो, जहर भी मांग, कोई भी मांग है, कुछ भी मांग लो, किंतु माँ समझती है अब इसके क्या करेगी, इसको नष्ट कर देगी, फायदा कुछ नहीं हो। तथापि बच्चा पड़ जाता है, तो माँ कभी भी दे दे, ले जा। उसी प्रकार भगवान के पास आकर के सामान्य वस्तु मांग लिया, ये मूर्ख है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आमा भजे मागे विषय सुख आमी विज्ञ। कृष्ण कह रहे हैं आमी विज्ञ, आमी विज्ञ मीन आई नो एवरीथिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। किंतु संसार के विषय इनको मैं क्यों दूं, ये तो दुखदायी है।
पुत्र कन्या स्त्री पुत्र आदि दुखदायी है कि नहीं? सबको पूछ लो, सबके देख लो आप, एक एक दूसरे से पूछो। आरसी तो तुम्हें मिलेगा नहीं इधर, आरसी एक दूसरे के पास है। हाँ समझ भी नहीं, एक दूसरे से पूछो भाई तुम्हें कितने सुख मिला, बोले तेरे कितने सुख मिला जितना तुझे मिला। वो बोलेगे तुझे जितने मिला उसे मेरा ज्यादा, वो बोले नहीं तुझसे जितना मिला मुझे ज्यादा। आप बताओ, ये बता देंगे सब बता देंगे, जानते अनुभव है, अनुभव की बात है। हम बोले तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। ये हंस रहा है अपने पे ही। मैं तो कोर्ट से बाहर आ गया, अभी भी अंदर है। हाँ समझ में नहीं, जो कोर्ट से बाहर है या फिर ये जाना क्या? ये अभी नहीं आया हमारा, अभी भी है। अभी फंसा है बोल रहे, अरे ये लोग फंसना चाहते हैं। पीछे बैठा हमारा जो, पीछे बैठा बगल में। एक सामने भी है, एक सामने है, ये कौन कहाँ कर रहे हैं पता क्या चल रहा है। और कुछ लोग फंसना नहीं जानते, ऊपर से ही हरी बोल करता रहता है। नहीं नहीं ऐसे मत करा करो, वर्णाश्रम धर्म पालन करो। क्या बोला? वर्णाश्रम धर्म पालन। एवरीबडी हैव टू फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वैदिक सिस्टम वर्णाश्रम। ऐसा नहीं, गलत काम मत करो। क्या बोला? हाँ गलत काम मत करो, नहीं नरक में जाओगे। कौन रोकेगा तुम्हें? जब पता लगेगा तब होगा, क्यों पता लगेगा तब कुछ करना नहीं। भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जो है वो वेश्यालय में जाता था, है तो दोनों के पूछा गया, अरे तू क्या करते हो? बोले जब महाराज बोले इनको तो नरक में जाना पड़ेगा 100 साल के लिए, है तो वो बोले ठीक है मैं मेरा जो क्या बोले बेसान पत्नी जो है वो कहाँ जाएगी? वो भी नरक में। अच्छा ही आप दोनों एक साथ में रहेंगे। तो मूर्ख को क्या पता नहीं है, नरक में जाकर के वो भी सोच रहे हैं वहीं पर भी भोग करेंगे। पति पत्नी के वहां थी वहीं पर सुख भोग करेंगे। मूर्ख है, वहीं पर तो डंडा चलेगा हर रोज, आग में तलेगा, आग में तलेगा। यही है। तो इसलिए हम लोग ये कहते भाई वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न पुमान विष्णु आराधते पंथा नन्ना तत्व कारणम। ये शास्त्र की वचन है, वर्णाश्रम धर्म की ठीक से पालन करो। विवाह के लिए माना नहीं किया है। विवाह करो, घर संसार करो, पति पत्नी के रूप में रहो, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करो। छचड़ा का मत करो। क्या बोला? मैंने गलत काम मत करो। क्या बोला? गलत काम मत करो, गलत काम मत करो। अच्छा एवरीबॉडी फॉलो द रूल्स वर्णाश्रम। ये अच्छा है। हाँ समझ में नहीं है। मैं तो कहता हूँ पत्नी चली गई तो अच्छा ही है, पति चला गया तो अच्छा ही है। क्या तुझे जरूरत है? भगवान के भजन करो ना। क्या ये कृपा है? वो जाते ही नहीं, वो जाएगा पूरा आपको लेकर के जाए। अच्छा चलो, नृसिंहदेव के पास हम लोग इसलिए आए हैं। हे नृसिंहदेव, हम जो नवदीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं, आप परिक्रमा करने के लिए हम संकल्प करने जा रहे हैं। आप हमारे सारे बाधाएं को जो है आप दूर ये करने के लिए आए। और कुछ नहीं, काल हम परिक्रमा के लिए क्या करेंगे? संकल्प लेंगे। इसलिए संकल्प लेने के पहले नृसिंहदेव के निकट आकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे नृसिंहदेव, हमें कृपा करें या हम सुचारू रूप से हम क्या करें? नवदीप धाम परिक्रमा।
क्यों काल परसों 2-3 दिन बाद आएंगे, 15 तारीख को 15 तारीख को आएंगे, 15 को आएंगे। 15 को आएंगे। तो उस समय तो बहुत भीड़ होगा। हमें मतलब अभी तो सिर में तो घूम रहे थे, इतने लोग कहाँ ठहरेंगे कहाँ? हाँ? अभी तो देखा मैंने इतने लोग घूम के जा रहे हैं। आज इतने लोगों के परिक्रमा एक साथ में लेकर के घूमना, कितने सब नित्यानंद करेंगे, ये तो बात सही है। कृष्णदेव करेंगे, गुरुपाद भी करेंगे, तथापि तो देखना पड़ता है ना। चले हम नृसिंहदेव प्रार्थना करते हैं, नृसिंहदेव आप ही स्वयं जो है ये परिक्रमा के संचालन करें, इस परिक्रमा की आप संभालें, सब कुछ आगे आप भी हमें ऐसी शक्ति संचार करें जो परिक्रमा हम लोग भी सब एक साथ में मिलजुल करके परिक्रमा गौर प्रेमानंद है। ये नृसिंहदेव की Ah, thank you. Esse é meu, esse saco verde é meu. Esse aqui é o comigo, aqui. Isso. Close now. Yeah. Obrigada. Tudo certo no final, né?